I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. जनवरी गणतंत्र दिवस का शुभारंभ सर्वप्रथम शासन श्री मुनि श्री अरविंद कुमार जी स्वामी के नमस्कार महामंत्र से होगा। तन्मयता से नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम Bravo.
इस मंगल कार्यक्रम की शुरुआत महिला मंडल के मंगलाचरण के द्वारा। तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि जीवन नैया के कर्णधार परम पावन महातपस्वी महामनस्वी परम यशस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। विराजमान श्रद्धास्पद शासन श्री मुनि श्री रविंद्र स्वामी 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित इस वृद्धाश्रम के पदाधिकारीगण, वृद्ध वृद्धाएं, तेरापंथ समाज के, अदर समाज के सब श्रावक श्राविकाएं, यह पवित्र कार्यक्रम 26 जनवरी 1950 का जब संविधान का लेख लिखा गया था, उसके उपलक्ष्य में हर साल यह कार्यक्रम मनाया जाता है। सर्वप्रथम यहाँ इस आश्रम में जो आश्रय ले रहे हैं सब पिता माता तुल्य वृद्ध वृद्धाओं को और समस्त सब श्रावक श्राविकाओं से इस रिपब्लिक डे का सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, मंगल कामनाएं देना चाहूंगा कि यह जो कार्यक्रम इस प्रांगण में हो रहा है बहुत एक व्यवस्थित अच्छा सुंदर उपक्रम हो रहा है। संविधान का लेख लिखा गया, उसमें मानवाधिकारों की आवाज बुलंद की गई। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा कि संविधान क्या होता है। संविधान मतलब नियम और कानून, उनका संग्रह, नियमों का और कानूनों का संग्रह होता है संविधान। इंसान को अपने अधिकार नहीं पता कि मैं इस देश में रह रहा हूं। एक परिवार में रहते हैं तो वहां के भी संविधान रूल्स रेगुलेशंस होते हैं।
समाज में रहते हैं तो वहां भी कुछ ट्रेडिशंस, परंपराएं, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं। तो हम इस देश में रह रहे हैं तो उसके हमारे क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये संविधान में सब ब्यौरा दिया गया। वैसे तो 26 जनवरी 1949 में संविधान तैयार हो गया था, परंतु इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 साल लगा, लागू करने के लिए, संशोधन आदि करने के लिए, तो 1950 में यह लागू हुआ। इसमें कई तरह के नियम और कानून हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो वो भारत का, और इस वर्ल्ड में सबसे छोटा कोई संविधान है, पहले किसी समय में अमेरिका का हुआ करता था, आज की तारीख में मोनाको, विदेश की एक कंट्री है मोनाको, वहां का लिखित संविधान है। संविधान में अनेकों बातें हैं। जब संविधान लागू हुआ, कहते हैं उस समय पार्लियामेंट में लगभग 150 आदमी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि 150 आदमी थे जब इनका ये संविधान देश के लिए तैयार किया। संसद जो एक लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर देश और समाज के लिए, इंसान के हित में विचार, निर्णय दिए जाते हैं, और जो भी जनता के हित के लिए काम होता है वहां पर बिल पास कर दिया जाता है। ये संविधान का लेख इसलिए लिखा कि आदमी को अपने अधिकार पता चले। वैसे आपको पता नहीं होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। कुछ अधिकार मैं जो जानता हूं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई ड्राइविंग कर रहा, उसके ब्लड 100 ml ब्लड है, उसमें अल्कोहल की मात्रा 30 mg से अधिक पाई जाए तो कहते हैं बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आप किसी भी 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाइए, वहां पर पानी फ्री और वॉशरूम यूज कर सकते हैं फ्री में, कोई मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो सीधा गिरफ्तार हो सकते हैं। ये संविधान का एक एक्ट है, कानून है। तो ऐसे कई कानून हैं। स्त्री को पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसे काफी संविधान में नियम, कानून, कायदे हैं जिसका हमको नहीं पता होगा। शायद इंसान इसको जानने के लिए उत्सुक भी नहीं होता है कि हमारे अधिकार क्या है। आज लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज तो इतनी बुलंद है कि राष्ट्रपति, देश के प्रेसिडेंट को भी कोर्ट कचहरी में लाया जा सकता है। अभी म्यांमार की घटना आपको ध्यान में होगी, वहां की राष्ट्रपति को 4 साल की कैद भी लोगों ने करवा कोई हुआ होगा, इश्यू हुआ होगा। तो कहते हैं मानवाधिकार की आवाज इतनी बुलंद है अगर अधिकार इंसान को पता हो। तो ये संविधान लोगों की सुख, शांति, समृद्धि, व्यवस्था के लिए लागू किया गया, बनाया गया। ये तो हो गया इंसानों के द्वारा तैयार संविधान। एक संविधान तैयार किया ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने। वो संविधान की कोई अवहेलना कर दे तो वहां पर कहते हैं कि सुनामियां आ जाती हैं, चक्रवात आ जाते हैं, भूकंप जैसी आपदाएं भी आ जाते हैं जब भगवान के बनाए हुए संविधान का कोई उल्लंघन करता है, खंडन करता है, उसे तोड़ता है। सबसे पहले बता दूं कि बच्चा जन्म लेता है तो उसका संविधान तैयार होता है। वो भगवान ईश्वर अपने रूप में 2 फरिश्ते इस धरती पर भेजता है। वो 2 फरिश्ते हैं माँ और बाप। ये इस संविधान के 2 मजबूत सिपाही हैं जो इनकी रक्षा करते हैं, परिवार रूपी, समाज रूपी, घर रूपी संविधान। कहते हैं ईश्वर ने अपने रूप में ये 2 वरदान कह लो, फरिश्ते कह लो, धरती पर भेजे। एक कल्पना करें, एक बच्चा अपनी माँ से पूछता, भगवान से पूछता है कि तुम मुझे धरती पर तो भेज रहे हो, परंतु वहां पर मेरी सार संभाल कौन करेगा? मैं तो इस दुनिया से अनजान हूं, मैं तो कुछ भी किसी को पहचानता नहीं। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, क्या ओढ़ूंगा, क्या कहाँ रहूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं पता।
कहते हैं, ईश्वर उससे कहता है तुम चिंता क्यों करते हो, तुमसे पहले मैंने वहां पर 2 फरिश्ते भेज दिए। 2 फरिश्ते भेज दिए हैं, वो फरिश्ते हैं माँ और बाप। तुम चिंता मत करो, बच्चा जब जन्म नहीं लेता उससे पहले माँ के आंचल की दूध की व्यवस्था ईश्वर गॉड कुदरत कर देती। इंसान पूरी उम्र चिंता में घुलता रहता है व्यवस्थाओं की, क्या होगा क्या होगा, कल नौबत आने पर क्या होगा। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कुदरत ने जन्म लेने से पहले माँ के दूध की व्यवस्था कर दी, रहने के लिए 2 फरिश्तों की व्यवस्था कर रखी है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इंसान चिंताओं का, निरर्थक बिंदुओं का भार ढोता रहता है। तो ये 2 फरिश्ते भेजे, इन फरिश्तों की कोई उल्लंघना कर दे, अवहेलना कर दे तो कुदरत प्रकोप, उपद्रव कर डालती। एक माँ जिनका थोड़ा सा मन बेचैन सा हो रहा था, अपने जवान बेटे से कहा, बेटा आज तुम मेरे पास सोना, आज मेरा थोड़ा सा मन बेचैन सा हो रहा। तब उसने कहा ठीक है, सर्दी के दिन थे, बेटा है, माँ, 2 शरीर 1 आत्मा, इससे बड़ा भगवान और कौन होगा। तो बेटा सोया पास में, और रात के समय माँ ने कहा मुझे पानी पिला दे थोड़ा। उठा, सर्दी में थोड़ा सा मन महसूस रहा था, सर्दी में उठना रात को वो भी भारी पड़ता है। वृद्ध वृद्धाओं को पता है ये अवस्था आती है तो रात को 3-4 बार उठना पड़ जाता है। तो मन महसूस कर उसने पानी लाया और माँ के हाथ से गिर गया, बिस्तर गीला हो, थोड़ा सा गुस्सा आया। दूसरी बार फिर माँ ने पानी मांगा, आधा घंटे बाद उठाकर बेटे को, फिर माँ के हाथ भूजने लगे और गिलास गिर गया, बिस्तर गीला। फिर उसने मन को समझा लिया, फिर बिस्तर बदल दिया। तीसरी बार पानी मांगा और फिर गिर गया। अब तो उसका आवेश 7वें आसमान पर पहुंच गया और कहा तू अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं है क्या, ऐसे शब्दों से बेटा बोला। देखिए, जब इंसान 3-4 साल का होता है, बच्चा होता है, उस समय कितनी बार अपनी माँ को पूछता है, माँ ये क्या है, वो क्या है। माँ कहती है बेटा ये बल्ब है, ये कूलर है, ये पेन है। कितनी बार बच्चा पूछता, परंतु अब माँ की आंखों में जाला आ गया है, वृद्ध हो गई है। माँ पूछती है बेटे से, बेटा ये क्या है, तो 2-4 बार पूछती है तो वो झुंझला जाता है, अंधी हो गई है कब दिया। ऐसे ऐसे शब्दों से अवमानना भी करने लग जाता है। तो वो माँ जिसके बेटे ने कहा कि तुम बार बार पानी लेती हो, बार बार गिरा देती हो, तो माँ ने कहा कि जब तुम बच्चे थे ना, उस समय कितनी बार बिस्तर गीला करते थे रात को, सर्दियों में गर्मियों में, तुम्हें पता है क्या कितनी बार मैंने बिना नाक टेढ़ा किए, बिना नाक चढ़ाए तुमको कितनी बार सूखे में सुलाया, और कितनी बार तुम्हारी शिकायतें जब स्कूल से आते थे, बस्ता बैग गिर के मेरे गले लगकर कितनी शिकायतें करते थे कि माँ आज ऐसा स्कूल में हो गया, ऐसा कर दिया, बच्चे ने ऐसा किया, टीचर ने ऐसा किया। और अब माँ बाप की कोई शिकायतें नहीं सुन सकते। उस समय कितनी चीजें वैरायटियां मांगते थे खाने के लिए, माँ मैगी बनाओ, आज पिज्जा बनाओ, आज बर्गर बनाओ। आज जो डिमांड क्या करते मैंने खाने के लिए, तो लोग कहते थे तो खाने का जीती है। ऐसे ऐसे बेटा ने बहू ने बोल दिया, कोई खास बात नहीं। माँ ने कहा फिर भी कोई खास बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानती। जब हम छोटे थे, भाई छोटे थे, उस समय क्या कहकर लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। लड़ते थे कि नहीं? पीछे कौन कौन बैठे हैं? निर्मल जी, भैरूलाल जी साहब। जब बच्चे थे तो उस समय क्या कहते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, भाई भाई लड़ते थे। और आज जब लड़ते हैं भाई भाई, उस समय क्या कहते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ऐसा कहकर लड़ाइयां करते, लड़ते
भुला नहीं जा सकता, उपकार को भुलाया नहीं जा सकता है। कहते हैं ठंडी ना सही, गर्म ना सही, ठंडी ही बांध देती है, ताजी ना सही, लुकी ही बांध देती है। मेरी माँ मुझे अपनी बच्चा समझती है, जब से स्कूल जाता हूँ तब अठन्नी बांध देती है। कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, कितने भी पद अलंकरण हासिल हो जाए, माँ के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा। उसके लिए वो बड़ा नहीं हो पाएगा। उसके लिए बच्चे के मन में उसके प्रति वैसा ही दर्द होगा जैसे वो छोटा था। तो इसलिए बछड़ा गाय के कितनी मर्जी लाते मार दे, परंतु गाय कभी उसे दूध पिलाना नहीं भूलती। तो ये भगवान का संविधान, ये इसकी जो उल्लंघना करता है उसे सुनामी जैसी आपदाओं का सामना भी करता है। इसलिए कहते हैं मत रुलाना माँ बाप को, कुदरत कहर बरपा देगी। मत रुलाना माँ बाप को, कुदरत कहर बरपा देगी। एक आंसू आया उनकी आंख में तो कुदरत सुनामी ला देगी। तो कहा क्या, अपने दायित्व को जो भूल गए, जो भूल जाते हैं, वास्तव में मैं उन्हें अभागा मानता हूं। इस भौतिकतावाद की चकाचौंध में, वासनाओं की आंधियों में जो दौड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनों को भूल गए हैं, समय आने पर कुदरत उनसे कर्जा ले ऋण वसूलेगी। जब उनके बच्चे भी फार्म मंगवाएंगे, कैसे? एक माँ बाप, पापा ने कहा, बच्चे ने पूछा पापा से कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मम्मी पापा के लिए 2 फार्म ला रहा हूँ वृद्धाश्रम के लिए। उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा 4 लेके आना। 4? 2 ही तो वृद्ध है अपने घर में। तो बच्चे ने कहा 2 तो दादा दादी और 2 में आप मम्मी पापा। जब आप बूढ़े होंगे तो आपके लिए भी मैं व्यवस्था करूंगा वहां पर। जो कुदरत को देते हैं, कुदरत वो ही हमें लौटा रही है। खैर, उम्र के हर दौर का आनंद लेना चाहिए। कोई भी स्थिति हो, कैसी भी अभावग्रस्त स्थिति हो, हर स्थिति का आनंद लेना सीखे। मैंने देखा यहाँ का माहौल, जैसे ही अंदर में आया ऐसे लगा जैसे कोई मंदिर में आ गए। अंदर आते, क्योंकि यह भी एक वृद्ध वृद्धाएं होते हैं, ये भी एक मंदिर की मूर्त के समान है। अब ये कोई भी अवस्था है, पहले तो शिकायतें करना बंद कर दीजिए। कभी भी भगवान को, घर वालों को शिकायतें मत दें। जो भी स्थिति है उसको स्वीकार कर लें, हृदय से स्वीकार कर लें। हम ज्ञान की ओर, ज्ञान मार्ग की ओर अपने मन को मोड़ने का प्रयास करें। जो भी अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं हैं, ये मेरे कर्मों के कारण आई हैं, ऐसा हम स्वीकार कर लें। सुख आए हैं चाहे दुख आए, क्योंकि जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो कर्मों पर आधारित होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी 2 मिनट की, 3 मिनट की घटना बताना चाहूंगा। एक 2 भाइयों का परिवार, जिसमें माता और पिता एक्सपायर हो चुके थे, स्वर्गवासी हो चुके थे। तो छोटा भाई जन्म से ही बीमार रहता था। उसके दवाई दारू पर बहुत पैसा खर्च होता था। बड़े भाई ने उसे बड़ा किया, छोटे से बड़ा किया। पढ़ लिख नहीं सका, शादी भी नहीं करवा सका, क्योंकि ऐसी स्थिति में नहीं था। पैसा खूब था, संपन्नता थी, जमीन जायदाद आदि सब कुछ था। बड़े भाई की शादी हुई और घर में बहुरानी आई। 6 महीने तक उसने घर का माहौल देखा और एक दिन अपने पति को कहा कि आप कब तक इसकी दवाइयों पर ऐसा पैसा पानी की तरह बहाते रहोगे? क्यों ना इसे भगवान के घर भेज दो और पीछे से जमीन जायदाद सारी आपकी हो जाएगी। जमीन जायदाद, पैसे के लिए कितने केस चलते हैं इस दुनिया में, लड़ाई झगड़े चलते हैं, और तो और खून के रिश्ते, बेटा बेटी, माँ बाप के बीच में भी ये तकरारें हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं छोटी सी जिंदगी, टकरार किस लिए रखते हो दिलों में, दीवार किस लिए? तो घरवाली ने कहा, भाभी ने कहा उस छोटे भाई की कि इसको दवाई में, भोजन में पॉइजन मिलाकर दे दो
और ना सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। तो उसके भी बात जच गई। एक दिन नाश्ता पानी दे रहे थे, उसमें पॉइजन मिला दिया, जहर मिला दिया, और जैसे ही छोटे भाई ने खाया उसके भीतर में उतरा और आंतें कटने लगी और वहीं पर झाग निकली और वो वहीं पर चिरकाल के लिए नींद में चला जाता। कुछ महीनों के बाद में बड़े भाई की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, बच्चा जन्म लेता है, लड़का। जन्म से ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है, बड़े अस्पताल में रखा, क्योंकि बड़े बाप की औलाद, अस्पताल में रखा और पैसा पानी की तरह बह रहा। 6 महीने तक पैसा इंजेक्शन पर, दवाइयों पर, फीस पर, चेकिंग टेस्टिंग पर, बड़ी बड़ी टेस्टिंग होती हैं, छोटी मोटी टेस्टिंग्स नहीं होती है, पैसा पानी की तरह बह रहा। और एक दिन 6 महीने हुए होंगे, दोनों माँ बाप बच्चे के पास में बैठे थे और बच्चा बोला, मानव की आवाज में बोला कि भाई अब मैं जा रहा हूं, मेरा हिस्सा पूरा हो गया, मेरी पांति पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूं। तब उसका पिता बोला, कौन भाई, हम तो तुम्हारे माँ बाप हैं। तब उसने कहा कि इसी जन्म में याद कीजिए, आपने मेरा हिस्सा दबा दिया था, जमीन जायदाद में, मकान में, पैसों में, मैं वही हूं जिसको आपने जहर देकर मारा था। अब हिसाब लगा लीजिए, तब तक का 6 महीने में मेरा पूरी पांति ले ली है, मैंने पूरा अपना हिस्सा ले लिया है। ये कहते कहते वो दुनिया से अलविदा हो जाता। माँ बाप के सामने आंसुओं की धारा, अपने किए हुए पर पछतावा। तो कर्मों पर आधारित ये रिश्ते नाते हैं, इसलिए अपने मन को ज्ञान मार्ग की ओर मोड़ने का प्रयास करें। स्वीकार करें, फूल हैं, कांटे हैं, ये दोनों ही कुदरत के हैं, ईश्वर के हैं, इसलिए दोनों को स्वीकार करें। शिकायतें नहीं करेंगे हम, ना तो घर वालों से, ना भगवान से, ना अपने आप से। प्रसन्न रहने का प्रयास करें, हर स्थिति में अपने आप को, मन को खुश रखने का प्रयास करें। और साथ में आज के इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक गीतिका आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा कि क्या मांगे हैं। जब आप सामने मंदिर, मुझे बताया राजकुमार जी गुलिया, जो यहाँ के 20 ट्रस्टियों में एक ट्रस्टी हैं, कि यहाँ पर जितने भी वृद्ध वृद्धाएं हैं, यहाँ पर बैठकर थोड़ी भक्ति करते हैं, मन को शांति भी देने का प्रयास करते हैं, अच्छा है। तो साथ में ये लाइनें भी ऐड कर दें, साथ में गुनगुना सकते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन,
कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख मिलता है जिसमें, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। तो हम कुदरत को, परिवार को, समाज को कभी भी शिकायतें ना दें। जो भी मिला है अच्छा मिला है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए यहाँ पर कुदरत कोई भी अकेला नहीं है, कुदरत सबके साथ में होती है। इसलिए अपने आप को कभी भी असहाय ना माने, और कभी भी मन परेशान हो, बेचैन हो, तो बचपन के उन पलों को याद करें जब हम 7, 8, 5 साल के थे। उस समय मन बार बार प्रसन्नता में जाएगा। इस उम्र में चित्त समाधि, मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए अभाव में ना जिए, ना किसी अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। यह जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव में जिए। और एक और मंत्र आपको बता रहा हूं, खुश रहने के लिए कहा गया, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे सारा जमाना बधाई देता है। कोई आपको गाली निकाले तो उदास मत होना, कह देना मुझे ऊंचा सुनाई देता। तो सुनने का प्रयास ना करें, अपने मन को शांत प्रसन्न रखें। प्राणायाम के प्रयोग, सुबह सुबह थोड़ा योगासन आदि आदि ध्यान जाप के द्वारा मन को प्रसन्न करें, आत्मा को भावित करें। अच्छे सद्विचारों का बीजारोपण मन में लगाएं। सुबह सुबह जो भी आपने अच्छे कार्य किए हैं लाइफ में उनको याद करें। इस तरह से अपने मन को प्रसन्न रखें। तो हमको भी बहुत आत्म संतोष की अनुभूति हुई, आत्मतोष की अनुभूति हुई यहाँ पर कि पिता तुल्य माता तुल्य वृद्ध वृद्धाओं के बीच में आए। तो यहाँ की ये भी जिंदगी देखकर मन में एक कला, एक कड़ी और जुड़ जाती है कि कोई भी परिस्थितियां आए उसमें जिया जा सकता है, जिंदगी के हर दौर का आनंद लिया जा सकता है। ये जिंदगी हमारी है। ओम शांति संस्थान के अशोक जी, कोटकरे साहब, राजकुमार जी और सभी
ट्रस्टी मेंबर्स, आज इस अवसर पर उपस्थित सभी ट्रस्टी की फैमिली, ओम शांति संस्थान में निवासरत सभी माताएं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। मैं इस संस्थान में पहले भी आया, आज मौका मिला आप सभी लोगों से एक साथ बातें बोलने का। जनरली जब आते हैं यहाँ पर तो यहाँ जो आवासित हैं उनसे मिलना होता है, लेकिन आज महाराज सिर्फ से दर्शन हुए और आप सभी लोगों से भी मिलने का मौका मिला। हम यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण है। इस बार आपने देखा, अब भी आप जब शाम को देखेंगे तो 26 जनवरी की झांकी में भी विधिक सेवा प्राधिकरण की झांकी है। यह संस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जो भी गरीब है, वंचित है, वृद्ध है, बालक है, महिलाएं, इनको निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब ये नहीं है कि वकील कोई फ्री में पैसे करता है। वकील को तो फीस मिलती है, लेकिन वो फीस सरकार देती है। और कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं जब सीनियर सिटीजन के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ और हमने इंटरफेरेंस किया, हमने बयान लिए, हमने संपत्ति की सूची दी, तो बच्चों ने अपने माँ बाप को लेकर चले गए। बोले कब जज साहब की नजर आ गई है इस मामले में, हमको कोर्ट में कानूनी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ी। केवल हम आए और हमने बयान दिए कि भाई कितनी प्रॉपर्टी है आपकी। बोले 10 दुकानें हैं, खेत है, करीब 3 करोड़ की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स होम्स में रह रहे हैं। तो बच्चों को जब पता चला तो बच्चे वापस उनको लेकर भी चले गए। जेल के अंदर भी बंदियों को निःशुल्क सहायता देते हैं। और स्थिति तो यहाँ तक है, एक चोरी का मुलजिम है, वो उसने कोई 22-23 चोरियां कर दी और मेरे को करीब 2.25 लाख रुपए वकीलों को देने पड़े। इस बार मैं जब जेल में गया तो मैंने उसको कहा कि अब तू मत कर, क्योंकि वो चोरी करेगा तो उसको वकील को फ्री में मुझे देना ही पड़ेगा, और वो जो वकील करूंगा तो वो उसको जमानत में छुड़ाएगा, वो बाहर जाके फिर चोरी करता है। लेकिन हम मना नहीं कर सकते। इतना इसके अंदर इस कानून जो बना हुआ है विधिक सेवा का, तो चाहे कोई भी वंचित है, नई व्यवस्था है जिसके अंदर हर व्यक्ति को, महिलाएं हैं, वृद्ध है, बालक है, उनकी इनकम कितनी भी हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको निःशुल्क वकील मिलते हैं। तो अपने कानूनी अधिकार जरूर बने हुए। ये संस्थान कितना अच्छा पवित्र संस्थान है, यहाँ आने से सुकून का अनुभव होता है। इच्छा होती है कि इस संस्थान में बार बार। आपने राजकुमार जी ने भी कहा कि आज भोजन करके जाइए। पहले भी मैं आया यहाँ पर, चाय पी के गया, नाश्ता करके गया। अन्न तो वहीं खाना चाहिए जहाँ मन करे। एक उपनिषद के अंदर एक दृष्टांत आता है। एक शिष्य था, कोई काम से, कोई कारण से वो जेल चला गया। तो उनके गुरुजी कभी कभी अपने शिष्य से मिलने जेल जाते थे। शिष्य को कुछ समय से एक समस्या आ गई। वो जब भी सोता जेल के अंदर तो उसको सपना आता कि उसने अपनी माँ की हत्या की। वो बेचैन होकर बैठ जाता। उसने 3 टाइम पूजा करनी शुरू कर दी, फिर काल संध्या करता था। फिर भी जब सोते तो उसको सपना आता कि वो अपनी माँ की हत्या की। उसने जब गुरुजी आए तो उनको कहा कि साहब मेरे सामने ये समस्या है। गुरुजी ने जेलर को पूछा कि अभी खाना कौन बना रहा है, क्योंकि खाने का तो टर्न आता है। बोले कोई नौजवान लड़का बना रहा है। बोले उसका जुर्म क्या है? कहने उसने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। उस हत्या के जुर्म के अंदर वो
सजा काट रहा है, तो वो जो खाना बना रहा था उसके भाव से जो पवित्र आत्माएं खाना खा रही थी तो उनको सपने में भी इस प्रकार का आ रहा था। तो कितना फर्क पड़ता है अच्छी जगह जाने का, अच्छे लोगों से मिलने का और अच्छी संस्थाओं से जुड़ने का। आज मैं चाहकर मैं राजकुमार जी से निवेदन किया कि मैं आज आना चाहता हूँ, इन्होंने कहा नहीं बिल्कुल पधारिए, आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभा की तरफ से और महिला मंडल की तरफ से भी एक एक मिनट के लिए अपने स्वागत के इस प्रोग्राम में धैर्यलाल जी, मीना जी बाबे एक एक मिनट में अपनी अभिव्यक्ति देंगे। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी आदि संतों के चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ वृद्धा आश्रम में आज आकर के पहली बार मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माता पिता तुल्य सभी बुजुर्ग यहाँ विराजे हुए हैं और तेरापन सभा से बहने भाई श्रावक सेविकाएं पधारे हैं। मैं आज इस गणतंत्र दिवस पर सभी को तेरापन समाज की ओर से हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ओम नारायण। के चरणों में सत्संग वंदन। समुपस्थित समस्त मातृ पितृतुल्य वृद्धाश्रम के सभी सम्मानित माताओं और तेरापन धर्म संघ से पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी और सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस, हमारा भारत महान और इस पर हमें है सात्विक अभिमान। आज मुझे यहाँ पर अनायास ही सहज ही आने का अवसर मिला अचानक से, और आप सभी से मिलकर हमें बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी को तेरापन महिला मंडल भीलवाड़ा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और अपनों ने रुलाया और गैरों ने अपनाया, ये बहुत मानवता की सेवा है। मानव तो जन्म ले रहे हैं, इंसान तो जन्म ले रहे हैं, लेकिन इंसानियत मर रही है, मूर्छित हो रही है। तो यहाँ पर मानवता की जिंदा मिसाल यहाँ पर देखी जा सकती है। बड़ा एक अच्छा रिलैक्सेशन मिली और एक जिंदगी में सीखने का एक और अध्ययन यहाँ पर मिल गया, चैप्टर पढ़ने के लिए मिल गया। मेरा भी शायद वृद्धाश्रम में आने का संभव गया, पहला ही अवसर है और कभी छोटा गया उसको मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी स्वामी, जो कि एक वयोवृद्ध अवस्था में चल रहे हैं, स्थविर कल्प में चल रहे हैं, लगभग 84 इयर्स में भी इनका अंदर में मनोबल, आत्मबल, वैराग्य बल सुदृढ़ है। अंदर में पूरी कॉन्शियसनेस है, अंदर में पूरी जागृति है। आपने भी अपनी लाइफ में लगभग 40,000 किलोमीटर की पद यात्राएं कर दी। जैन संतों का एक नियम होता है पद विहार, पद यात्रा। अभी आचार्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भीलवाड़ा में चातुर्मास करवाया, वो भी लगभग इस जिंदगी में 50,000 किलोमीटर की यात्रा करवा चुके हैं। और 2014 के बाद से 6 सालों से सुदूर प्रांतों में यात्रा करवा रहे थे अहिंसा यात्रा के माध्यम से। उनके मुख्यतः 3 एजेंडे जज साहब को बताना चाहूंगा, 3 एजेंडे लेकर चल रहे थे। सद्भावना कि कैसे सभी संप्रदायों में, सभी पंथों में, सभी समाजों में सद्भावना बने। एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को विकसित होते हुए नहीं देख सकती है। आज की ईर्ष्या भावनाएं, कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ दुर्भावनाग्रस्त लोग होते हैं, तो वो संदेश दे रहे हैं अपनी अहिंसा यात्रा के माध्यम से कि सद्भावना विकसित हो परिवारों में, समाज में। और दूसरा नैतिकता, मॉरल वैल्यूज, इसके बारे में अहिंसा यात्रा के माध्यम से प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। तीसरा व्यसन मुक्ति, जो भी नशा मुक्ति है, इसकी और अपने अभियान को, कैंपेन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुनि श्री शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी स्वामी गुरुदेव ने महती कृपा करके मुझे मुनि श्री की सेवा में रखवाया है। तो अब आपके सामने वो भी आशीर्वचन, आपके कुछ बीमारियों से ग्रस्त हो गए, 1.5-2 सालों से लगभग काफी ग्रसित हो गए, पैरालिसिस, हर्पिस और साइटिका जैसी समस्याओं से,
तो ये वृद्ध वृद्धाएं हैं, यहाँ पर मुनि श्री 84 ईयर्स के, फिर भी देखिए इनके भीतर में मनोबल है कि मैं चलूंगा। मैंने आज सुबह कल पूछा कि वहां पर आश्रम में ऐसे जाना है, संस्थान में जाना है, तो आप तैयार? ऐसे उत्साह है, उमंग है, मन को गिराया नहीं, मनोबल को तोड़ा नहीं है। इसलिए इंसान का सब कुछ टूट जाए, मनोबल ना टूटे, कितने भी रिश्ते टूट जाए, मनोबल नहीं टूटना चाहिए। तो ये एक साक्षात इस चीज के एक दृष्टांत है। तो मुनि श्री अब आपके सामने आशीर्वचन फरमाएंगे। ज्यादा तो बोला नहीं, ज्यादा तकलीफ होती है मुनि श्री से, 2-3 मिनट आपके सामने आप भी करें। जीवन में शांति के सुख भय शांति संग आगे आप यहाँ शांति मिलनी चाहिए। शांति बाहर नहीं है, शांति अपने में ही है। बाहर कोई नहीं मिली हो, अपने में कोई हो। उसके लिए प्राणायाम है, ध्यान है, साधना है, साधना द्वारा शांति प्राप्त हो सकती है। इस संदर्भ में उनका आचरण है। आज मैं भी एक आश्रम में बैठता हूँ। आचार्य महात्मुनि ने मुझे अशुभ मुनि का आश्रम भेज दिया। यहाँ मुझे परम शांति है और मुनि का अनेक बीमारी ग्रस्त है। ये शरीर ग्रस्त है, मन ग्रस्त नहीं है। मन में कोई बीमारी नहीं है, शरीर है, शरीर होता है, शरीर नश्वर है। शरीर में अनेक प्रकार होती है, कोई गौरव की बात नहीं है। मन प्रसन्न रहना चाहिए, कोई चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। चित्त प्रसन्नता ही आदमी की जीवन की शैली होनी चाहिए। जीवन की शैली हमारी चित्त प्रसन्नता बने, इससे हमारे कर्मों का बंधन न हो और हमारा जीवन सुखी बन सके। इसी भावना के साथ में मैं मुनि के लिए विशेषता कहूँ, इन्होंने अच्छी तत्परता से, जागरूकता से मेरी साथ में किया है। इसलिए मैं उनके लिए अनेक अनेक शुभकामना करता हूँ। सुने अब मंगल आरती। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अनंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो दमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवजामि अरहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि चारो सदा देव प्रणतय कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। आज के आनंद की जय हो।